Hello everyone, I welcome you all in today's class. And in today's class, we shall discuss about very important topic of chapter 6, that is triangles, that is similarity criteria. Okay, and what I think that it is going to be quite harsh with you, that the proof of these three criteria we have, and the proof of all these three criteria is going to be very tough for you. Okay, so you have to be mentally prepared for this. As already we have discussed that there are three main criteria for similarity, that is ट्रिपल एस, ट्रिपल ए एंड SAS. ठीक है, लेकिन हम स्टार्टिंग करते हैं. we'll write as we have in our book triple A, triple S and SAS. All these three criteria, as I already told you, see, these two you have already read in congruency criteria, but this is new. And why it is only in similarity, not in congruency, this already I have discussed in the previous video. You should see that video and then you can learn. Okay, and now one more thing regarding AAA criteria is, suppose somewhere it is written AA criteria, तो आप इसे क्या समझते हैं? अगर कहीं कोई बोलता है कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया नहीं ए डबल ए क्राइटेरिया होता है, तब आप क्या बोलोगे? क्या ये पॉसिबल है? डबल ए क्राइटेरिया पॉसिबल? So obviously it is possible. It is possible just because, see, if two angles of two triangles are given equal, ultimately third angle is going to equal, and the reason behind that is angle sum property of a ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल वहां पर यूज होगा, और अगर दो एंगल्स इक्वल हैं then third is also going to be equal by using that angle sum property. So sometimes if it is given that two angles are equal, okay, so in that case we can write AA criteria, but that is the upgraded version of the triple A criteria. Okay, but the proof that we will see today is of triple criteria. Okay, so again I'm saying ये बहुत एक्टिव होने वाला है. आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को ना कंसंट्रेटेड होके इनका प्रूफ देखना है. ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया, प्रूफ ऑफ द फर्स्ट क्राइटेरिया. Okay, triple A criteria for similarity. Okay, this is our topic, first topic. Now, if you have your book, please open your book and try to read your theorem 6.3. The theorem is, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion. Hence, the two triangles are similar. Statement is, if in two triangles, ध्यान से समझना चाहिए, if in two triangles, if I give the name A, B, C, okay, and here these are D, E, F. ठीक, अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल हैं in which given is that these corresponding angles, suppose angle A is equals to angle B, angle B is equals to angle E, and angle C is equals to angle F. Okay, in two triangles, suppose A, B, C and D, E, F, if corresponding angles are given equal,
फाइन, ठीक है। ये चीज अगर आपको गिवन है तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, ठीक है। सिर्फ अगर आपको ये मिल जाए कि तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तब आपको प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। अब आप जरा क्राइटेरिया आई मीन डेफिनेशन याद करें कि डेफिनेशन जो है वो सिमिलरिटी की ये है कि साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए अलोंग विद एंगल से इक्वल, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये मतलब कब प्रूफ हो पाएगा, अगर आपके पास है AB अपॉन BE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन BF, ये भी आपका ट्रू प्रूफ में ही आया, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और ये गिवन है कि आपके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो सीधी सी बात है आपको साइड्स प्रोपोर्शनल करना ही तो रह गया है, तभी तो ये सिमिलर हो पाएंगे। सिमिलर की दो कंडीशंस तो हैं, फर्स्ट इज एंगल शुड बी इक्वल, साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन। तो एंगल्स आर ऑलरेडी गिवन इन इक्वल, that means the remaining thing is that side should be in proportional or in proportion. Now is it sufficient for us to conclude whatever we want to prove? Okay, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये sufficient नहीं है, and in that case as I already told you we take the third step, okay, and that step is known as construction. Fine, construction is required, and here we required a construction. So what are we going to do? We are going to do, see, as I already told you that always take the proof like your book only, ठीक है। जो भी आपको प्रूफ है उसमें जो भी आप फिगर्स बना रहे हैं, जो भी स्टेप लिख रहे हैं, वो आपको आपकी बुक को कंसीडर करके ही करना है। रीजन पहले ही बता चुके हैं, आंसर की इज मेड फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। तो ये आप यहाँ पर लेंगे PQ, तो कंस्ट्रक्शन हमने किया, कट DE such that AB is equals to DP and AC is equals to DQ। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कोई भी क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी क्राइटेरिया है, चाहे वो आपका AAA है, SSS है, SAS है, तीनों क्राइटेरियाज में आपका कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा। ओके, समझ आए। इस तरीके से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन प्रूफ में तो करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन आपका तीनों में सेम ही है, आपको जो करना है, फिगर सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है आपके प्रूफ में। देखते हैं वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ में, ठीक है। समझो, अभी जरा समझो, दिमाग लगाओ। क्या किया हमने, ये ट्राइंगल ABC, ठीक है, DEF एंगल्स हमको इक्वल दिए थे, हमने कंस्ट्रक्शन किया, PQ बना दिया, ठीक है। कैसे बना दिया PQ कि DP जो है AB के इक्वल है और DQ जो है वो AC के इक्वल। फाइन, अब आपकी बुक में अगर आप देखो तो चीजें बिल्कुल वही अलाइन करके दी है, सिर्फ उनके रीजन आपको नहीं दिए। मतलब आपको रीजन जो है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो रीजन आपको हम बताते जा रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखते जाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल DPQ, ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, ठीक है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? दिमाग लगाइए, एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, सी अभी हमने जैसे लिखा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि SAS कैसे लग पा रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
By SAS congruence rule, these two triangles like बहुत शॉर्टेज है स्पेस की, तो बहुत सी चीजों को रफ करना पड़ेगा, लेकिन आपको दिमाग में चीजें बिठानी पड़ेगी, ठीक है। ये चलो देखते हैं। अच्छा, इसको ये इक्वेशन आप कंसीडर कर लें, इक्वेशन 1। अभी क्यों ये कर रहा है हम देखते हैं थोड़ी देर से, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अभी समझो, तो इस क्राइटेरिया से हमारे पास आ गया ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल डीपीक्यू। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके एंगल इक्वल होंगे भाई, बाय सीपीसीपी, ठीक है। बाय सीपीसीपी वी विल हैव एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, इजंट इट, ठीक है। एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू, बिल्कुल बिल्कुल होगा, ठीक है। सीपीसीटी आप जानते होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये इसका फुल फॉर्म है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी हमने बोला था कि ऊपर आपको एक इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेनी है और इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लो। अब देखो जरा, बी एंगल ई के भी इक्वल है, पी के भी इक्वल है, सी एंगल क्यू के भी इक्वल है, एफ के भी इक्वल है। 9th क्लास एक्सियम, यूक्लिड्स एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, प्लीज याद करने की कोशिश करें। वहां पर था थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, याद हो तो, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। So this is something like that. B is equals to E and B is also equals to P. That means from equation first and second, we have, what do we have? We have that angle P is equals to angle E and angle Q is equals to angle F. Now try to understand. If angle P is equals to angle E, angle Q is equals to angle F, what is this? Which kind of angles are these? These are the corresponding types of angles, and if corresponding angles are equal, we'll have by the property of corresponding, ठीक है, आप इसको लिख लेना, corresponding angles we'll have PQ is parallel with E। बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हम लेके आए हैं यहाँ पर, ठीक है। we'll have PQ is parallel with EF। अब अगर PQ EF के पैरेलल है, फिर से लगा दो BPT। तो BPT क्या कहता है भाई, BPT हमको कहता है कि अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास होगा DP अपॉन PE या EP लिख लो, is equals to DQ upon QF। अगर इतना आप समझ पा रहे हैं तो, अगर आप इतना समझ पा रहे हैं कि आपके पास आ गया PQ पैरेलल टू EF, तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। अब समझो यार, आपकी बुक में यहां तक दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें कई जगह पे क्या मिसिंग है, रीजन मिसिंग, ठीक है। तो आपकी बुक से इसको मैच करते जाना कि हम किस स्टेप तक पहुंच गए हैं, वो बहुत कंडेंस दिया हुआ है, ये आपको बहुत इलेबोरेट फॉर्म में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है रूल जो हमने पढ़ा है, +1 रूल। रीजन क्या है भाई, +1 रूल क्यों चाहिए? पीई क्यूएफ को ऑब्जर्व करो, पीई और क्यूएफ कोई मतलब की नहीं है, हमको तो कंप्लीट साइड चाहिए ना भाई। जब तक हमको कंप्लीट साइड नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि ए बी जो है डीई के प्रोपोर्शनल है, या ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। उसको हम यूज करेंगे, वो है आपका +1 रूल। +1 रूल जरा यूज करते हैं, ठीक है। अब +1 रूल यूज करने के लिए ध्यान देना, अभी हमने बताया था कि अगर आपको ये चाहिए है, PQ चाहिए, PE चाहिए, तो कोई इशू नहीं, इसको डिनोमिनेटर में रखो। लेकिन हमको DP चाहिए भाई, क्यों चाहिए? देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया था DP इज इक्वल टू AB, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं
AB अपॉन PE। समझ रहे हो? मतलब आगे जाके हम ये करने वाले हैं, ठीक है, अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें +1 रूल फिर नहीं लगेगा। इस टाइप के ट्राइंगल में ही +1 और -1 रूल लगता है, ये बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। दो ट्राइंगल के कंपैरिजन में नहीं लगता है, एक ही ट्राइंगल में अगर दो ट्राइंगल लग रहा है तब ये रूल लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हमको डीपी रखना है, जिसको रखना वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हम डीपी को कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर में बाय रेसिप्रोकल। तो हमारे पास हो गया पीई अपॉन डीपी इक्वल्स टू QF अपॉन DQ, ठीक है। अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको +1 रूल पता है, दोनों साइड +1 करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा DE अपॉन, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, आपके पास आ जाएगा DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दीजिए जल्दी से, जिसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो कर लो। तो आपके पास आ गया AB अपॉन DP इक्वल्स टू AC अपॉन नॉट DP DQ, ठीक है, DF। नहीं समझ पाए जल्दी से देखो, DP ये है, रेसिप्रोकल करोगे ऊपर पहुंच जाएगा, DQ भी ऊपर पहुंच जाएगा। अब DP भाई किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, पहले से पता है, कंस्ट्रक्शन किया हमने। DQ किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, मालूम है, कंस्ट्रक्शन किया हमने। इतना हमारे पास आ गया, इसको जो भी इक्वेशन आपकी बन पा रही, शायद थर्ड इक्वेशन, आई डोंट नो, या मे बी थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। अब जरा समझो कि जब ये सिमिलैरिटी हो रहा था, ठीक है ना, जब ये सिमिलैरिटी हो रहा था उस केस में आपके पास PB अपॉन EF भी हो रहा था, समझ रहे हैं ना, सिमिलैरिटी है भाई, ठीक है। और जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो PB किसके कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, BC के। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AB अपॉन BE इज इक्वल्स टू BC अपॉन, सॉरी नॉट PB, BC अपॉन EF, ठीक है। एंड इसको आप इक्वेशन कर लो फोर्थ, जो कि आपके क्राइटेरिया में दिया होगा, ठीक है। आपकी बुक में इसके लिए कोई भी रीजन नहीं दिया गया है, तो आप इसको रीजन कैसे समझोगे कि जैसे आपके पास ये आया, ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि AB हो गया, AC हो गया, अब बचा आपका BC, ठीक है। तो BC ऑलरेडी आप कंपेयर कर सकते हो PQ से, तो PQ अपॉन EF तो आपके पास आएगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर थी, ठीक है। तो PQ की जगह पे आप क्या लेंगे, BC, तो आप इसको लिख सकते हैं ऑल्सो करके, ठीक है। ऑल्सो वी हैव AB अपॉन BE इक्वल्स टू BC अपॉन EF फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्या होगा, वही होगा जो प्रूफ होगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सब आ गया आपके पास। AB अपॉन BE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। This is the proof of your SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं क्योंकि टफ है, एक्चुअली टफ है। दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में तीनों जो एंगल्स हैं वो आपको इक्वल दिए हैं, साइड्स आपको प्रोपोर्शनल करनी है। साइड्स प्रोपोर्शनल करने के लिए आप एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि जो आपके पास स्मॉलर ट्राइंगल है उनकी दो साइड्स के इक्वल आप कट करते हैं बिगर जो आपके पास ट्राइंगल है उसको। जैसे आप कट करते हो तो आपके पास ये चीज समझ आती है कि ये जो पार्ट बन रहा है इट इज व्हाट congruent, it is congruent, and if it is congruent then we can compare the sides, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, साइड्स और एंगल्स को सिर्फ कंपेयर करना है। तो पहले तो आपको दो एंगल इक्वल मिल गए, ये दो एंगल अगर इक्वल है और ऑलरेडी ये एंगल इक्वल है तो आपको ये साइड्स क्या मिल गई, पैरेलल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे आपको मिले
ये साइड पैरेलल मिली, आपने बीपीटी लगाया, 2 बारी बीपीटी लगाया, काम खत्म हो गया। समझे? जब तक ही प्रूफ नहीं करोगे, अपने से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको सीरियसली इन प्रूफ्स में दिक्कत जाएगी। ठीक, तो नेगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते हुए चलते हैं, और हम भी ऐसा समझ लेते हैं कि आपको समझ आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रूफ के तरफ। ठीक है, इसको रफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यही है जो बार बार हमको यूज होगा। बस इतना याद रखिएगा कि बुक में आपको शॉर्ट में दिया हुआ है, इसीलिए जो भी रीजन हम यहाँ बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जब आप कॉपी में नोट डाउन करो तो रीजन के साथ लिखिएगा, ठीक है? अदरवाइज आप बुक से कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप कहाँ से है। ठीक है, नाउ कम टू योर थ्योरम 6.4। 6.4 थ्योरम इज okay. So your theorem is, if and two triangle sides of one triangle are proportional or in the same ratio, the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. We can say converse of triple A. गिवन दिया है, क्या दिया है भाई? गिवन ये दिया है कि जो 2 ट्राइंगल आपको दिए हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। माना कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए जल्दी से। टू प्रूफ आपको जो लेना है, वो टू प्रूफ आपके पास है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, सॉरी नॉट B, देन एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ठीक, अभी बोला क्योंकि ये कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब होता है कि जो भी आपने पहले में टू प्रूफ लिया है वो यहाँ पर गिवन होगा, जो भी आपने वहां पर गिवन लिया था वो यहाँ पर टू प्रूफ होगा। समझे? तो वही है, मतलब उल्टा पुल्टा है सब एकदम उल्टा पुल्टा है। वहां पर जो था वो यहाँ नहीं है, यहाँ जो है वो वहां नहीं, मतलब पता नहीं, मगर है ऐसे ही है, सब उल्टा पुल्टा है। ठीक है, तो हाँ है। कंस्ट्रक्शन पहले बोल दिए, रट लो, तीनों क्राइटेरिया में एक ही कंस्ट्रक्शन है। कट नहीं, कट मीन्स कुछ नहीं। AB इक्वल्स टू DP, AC इक्वल्स टू DQ। बिल्कुल ये आपका कंस्ट्रक्शन है कि हमने इस तरीके से इसको कट किया कि AB जो है वो DP के इक्वल है एंड AC जो है वो DQ के इक्वल है। दैट्स इट। लेट्स कम टू प्रूफ। प्रूफ पे आ जाए, समझने की कोशिश करो भाई। क्या कर सकते हैं अभी? अगर आपको ये एंगल इक्वल दिए हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है देखा जाए तो। कहना पड़ता है, नहीं तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, आपको एंगल्स इक्वल दिए हैं, ठीक है, क्या आप इन दोनों, अच्छा इसमें हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, इसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट यूज जो हो रहा है उसको समझना है। समझो, ये जो ट्राइंगल है, ये इस पूरे साइड के, ये इस पूरे साइड के हमको इक्वल दिया है, मतलब प्रपोर्शनल दिया है, सिमिलरली ये भी। और अब हमने कट इस तरीके से किया कुछ कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। फाइन, कुछ यूज हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। अभी देखो कैसे यूज हो पा रहा है। वहां हमने बीपीटी यूज किया था ना, अब क्योंकि ये कन्वर्ट्स है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। किस तरीके से वो देखिए, हमें दिया है AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। क्या इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? अगर कोई ना कहेगा तो वो फटेगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं। रीजन कंस्ट्रक्शन भाई, ए बी की जगह पर DP लिख सकते हैं, AC की जगह पर DQ लिख सकते हैं। और अगर हमने ऐसा लिख दिया तो बाय कन्वर्ट्स ऑफ BPT, कन्वर्ट्स ऑफ BPT
क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। ऐसा अगर आप लिख रहे हो तो आपको एक चीज और लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा कि पी क्यू पैरेलल विथ पी एफ। और अगर आप ये लिख रहे हो ना तो आपको एक और चीज लिखना पड़ेगा कि एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एफ। अभी देखो, समझो, यही सारे गोलमाल है यहाँ पर। जो भी अभी हमने पिछले थ्योरम में किया उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, ठीक है। वहां पर ये चीज हमको प्रूव करनी थी, ये हम लेके चल रहे हैं, ये हमको मिला तो हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया तो हमको साइड्स जो है पैरेलल मिल गई, साइड्स पैरेलल मिल गई तो हमको ये एंगल्स इक्वल मिल गए। अभी देखो ये दोनों ट्राइंगल को जरा कंपेयर करो, डी पी क्यू एंड डी ई एफ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा। अगर हम ट्राइंगल्स को देखें, ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो आपको कुछ समझ पा रहे हो? आप एक क्राइटेरिया पढ़ चुके हो ट्रिपल ए, और यहाँ देखो दो एंगल इक्वल मिल गए और एक एंगल तो कॉमन ही है, तो आप ये लिख सकते हो ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। लो भाई, हो गया काम, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया भाई, क्या चाहिए और? अगर आपने ये लिखा कि ये दोनों क्या है, आपके पास ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो इनके साथ हम एक चीज और लिख रहे हैं, वो देखो डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू पी क्यू रखो, डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी एफ। अब इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन सेकेंड। अगर आपके पास लिखा हुआ है पुराना जो हमने बोला था तो थोड़ा सा उसको याद कर लेना और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो। समझ पा रहे हो? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर लो, और कंपेयर करके आपको समझ आएगा कि आपको एक चीज मिल चुकी है, और वो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो आपकी बुक में हिडन है। आपकी बुक में ये चीज जो है ये हिडन है, तो आप इसको लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट, बी सी, ये चीज, ठीक है। आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, चलो बता देते हैं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन में सब लिखा हुआ है, सिर्फ पी क्यू की जगह पे बी सी लिखा हुआ है, आप चेक कर लो जरा, ठीक है। आपके फर्स्ट इक्वेशन में सब लिखा है, सिर्फ पी क्यू की जगह पे बी सी लिखा है, तो इससे ये समझ में आता है कि पी क्यू और बी सी क्या है भाई, इक्वल है। और अगर पी क्यू और बी सी इक्वल है तो एक बात जरा समझाओ हमें कि ये दोनों तो हमने कट किए थे इक्वल, और अब हमको मिल गया पी क्यू और बी सी भी इक्वल है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ द ट्राइंगल डी पी क्यू। अंडरस्टूड? क्राइटेरिया कौन से लगाए, लिखना बहुत कंपल्सरी है, ट्रिपल एस, ठीक है। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाय सीपीसीटी हमको मिल जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब जरा समझिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हमें करने थे एंगल इक्वल, टू प्रूफ यही था ना, एंगल्स इक्वल करने थे ना, तो ये एंगल तो इक्वल हो गया। अब जरा इसको समझो, बी एंगल पी के इक्वल और पी एंगल ई के इक्वल है। अरे भाई पैरेलल प्रूफ किया था स्टार्टिंग में, आप करो बी पी के इक्वल है, पी ई के इक्वल है, तो बी तो ई के इक्वल होगा, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, बी इक्वल्स टू क्यू, क्यू इक्वल्स टू एफ, ठीक है। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, so C equals to angle F, and hence we get angle A equals to angle D। एंगल बिल्कुल जगह नहीं है हमारे पास लिखने को, बहुत ज्यादा गरीब बोर्ड है ये, क्या करें, बच्चे होशियार हैं, समझ जाएंगे।
समझ जाना यार, लास्ट वाला क्या बचा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, बस। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इसको। क्या है ये, ट्रिपल एस क्राइटेरिया है। ट्रिपल एस मतलब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल दी होंगी, एंगल्स हमको इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं करना, वहां पे बीपीटी यूज किया, यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे तो दो एंगल आपको इक्वल मिल जाएंगे। जैसे ये एक एंगल आपको इक्वल मिले तो आपके पास दो इक्वेशन भी मिल जाएंगी। वहां से आपको ये पता चलेगा कि पी क्यू और बी सी इक्वल है। बहुत बाद में ये चीज पता चलती, पहले पता चल जाता, सब हो जाना था। चलो कोई नहीं, तो बी सी इक्वल टू पी क्यू है। जैसे बी सी और पी क्यू इक्वल है तो आपको एक चीज और पता चल जाएगी कि भाई ये दो ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट अगर है तो इनके एंगल्स इक्वल होंगे, और अभी एंगल्स इक्वल हो गए तो फिर सब काम हो ही गया, क्योंकि एंगल्स से तो इक्वल करने थे हमको। ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे होंगे, जो कि अपन लगा चुके हैं। ये हुआ प्रूफ ऑफ triple S criteria. That means if all the three sides or the corresponding sides of two triangles are given proportional, then angles must be equal. Come to the last. Oh, okay, no issue. अच्छे बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। आते हैं लास्ट क्राइटेरिया ऑफ last criteria of similarity, that is SAS. ठीक है, यहाँ पहले फिगर बना लो, क्या बिना फिगर के काम नहीं चलता नहीं। ठीक है, ए बी सी, अरे डी ई एफ। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन तो कोई भूला ना तो पिटेगा मैं यहाँ से, क्योंकि जब हम बार बार बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन वही है, मतलब वही है, मतलब वही। ठीक है, तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हो जाता है, पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद देखते हैं इसका प्रूफ। स्टेटमेंट क्या बोलता है, ए वन ट्राइंगल, वन एंगल, if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. नहीं समझ रहा है, हाँ कोई इशू नहीं, यहाँ समझो। If one angle, okay, of both the triangles are equal and one, नहीं, two sides which includes the angle are given proportional. क्या किया है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, और इसके साथ हमको दिया है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी एफ। समझ गए, इसी को बोलते हैं एस ए एस। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। फिर से बोलेंगे कि आपके बुक में बहुत शॉर्ट इसका जो दिया है, प्रूफ दिया है, तो रीजन सिर्फ आपको समझना है। रीजन आप अगर समझ जाते हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, और नहीं समझ पाते हो तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल मत भूलना, जो भी है वो है, हम नहीं बताएंगे क्या। ठीक है, तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं प्रूफ। चलो, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ बस इतना करना है कि या तो हमको ये साइड मिल जाए प्रोपोर्शनल, ये साइड, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम लगा देंगे, हमारे पास दो क्राइटेरिया। या फिर हमको ये दोनों एंगल भी मिल जाए इक्वल, तो हम ट्रिपल ए लगा देंगे। अपने पास बहुत सारा भी, ठीक है, आप भी अपने पास बहुत सारी चीजें जिससे प्रूफ कर सकते। तो इसमें आपकी बुक जो है, आपकी बुक में यूज किया गया है ट्रिपल ए। ठीक है, तो अपना क्या जा रहा है, अपन ट्रिपल ए यूज कर लेते थे। और ट्रिपल ए यूज करने के लिए क्या लेना है हमको, सबसे पहले तो जो भी आपको गिवन है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आप कंसीडर करेंगे इसको। ठीक है, और हमने जैसे कि कंस्ट्रक्शन किया है तो ए बी और ए सी की जगह पे हम जल्दी से लिख लेते हैं डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी। ठीक है, इतना तो समझ आया होगा भाई अपन। ठीक है, जैसे ही हमने लिखा
तो आपको समझ आएगा कि ये क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पीक्यू पैरेलल है किसके, ईएफ के। कौन सा क्राइटेरिया लगाया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया तो फिर वही चीज है, एंगल एंगल खेलना पड़ेगा अभी। तो आपको मिल गया एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। ये मिलने से क्या होता है, ये मिलने से बहुत कुछ होता है, यही तो चाहिए हमको, ठीक है। यहां तक आपकी बुक में एकदम सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला कि ऐसा चीज आपको कुछ भी मिल गया है, इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, पी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, क्या ये आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये हमने कट किए थे इक्वल, ये ऑलरेडी आपको दिया है इक्वल, तो आप अगर ऐसे क्राइटेरिया लगा दे तो आपके पास हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बीपीक्यू। ठीक है, आपकी बुक में ये दिया, रीजन नहीं दिया, रीजन आपको लिखना है। रीजन है बाय SAS congruence rule these two triangles are congruent and if these two triangles are congruent, तो बहुत अच्छी बात है भाई कि देखो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और पहले ही बोल दिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो क्या मिलेगा कि B E के इक्वल है और C F के इक्वल, हो गया प्रूफ खत्म है, प्रूफ खत्म है भाई। अब क्या, कुछ नहीं लिखना है, क्या लिख लो, चलो लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि आप भूल जाओगे, आप लोगों को भूलने की आदत है। समझते हैं, देखो जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया लगाया था, हमने क्राइटेरिया लगाया था SAS। जैसे ये प्रूफ हुआ तो हमारे पास मिल गया एंगल B इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q। और बेटा क्योंकि हम बोल चुके हैं कि PQ इज पैरेलल विद EF, तो हमारे पास था एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। इन दोनों को आप ले लो, जो भी आपके पास इक्वेशन है 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है, इक्वेशन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो जो भी इक्वेशन है आप उसको ले लेना और इन दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो बेटा ए और डी तो ऑलरेडी किया था इक्वल, ए और एंगल डी ये आपको गिवन था, साथ में आपको मिल गया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। क्राइटेरिया ए for similarity and hence triangle ABC is similar to triangle DEF. Once again, बहुत बड़ा काम हो गया आज तो। तीनों ही थ्योरम्स थोड़ी सी घुमावदार है, अगर आप इनको पढ़ते नहीं हो ना, फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ते हो या इसको थोड़ा लाइटली ले लेते हो कि क्या है अभी तो ऐसे ही है सब, तो फिर नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सीरियसली अलॉन्ग विद द रीजंस पढ़ने की कोशिश करें, इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, क्योंकि ऐसे मन से नहीं हो पाएगा, ठीक है, मन से आप नहीं कर पाओगे। ऐसे प्रूफ तो बुक में भी दिया है, अगर बुक से ही सब होना था तो टीचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, तो उसको आप पढ़ोगे अच्छी बात है, लेकिन ये रीजंस जो हमने बताए हैं ये लिखना कंपल्सरी है, उसके बाद ये आप कॉपी में लिखें और उसके बाद आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द नेक्स्ट theorems, but it's more than sufficient for today's class. Thank you so much.